हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है चाइनीज सोल्जर विद द पीएलए कार्ड अरेस्टेड इन इंडिया। माय गॉड, लद्दाख। सो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Starting this bulletin with a major development from India, a Chinese soldier has been arrested by Indian security forces amid heightened tensions between India and China along the line of actual control border. Now, the arrest was made near Demchok area by Indian Army. Indian agencies are probing whether there was any espionage involved. The Chinese soldier has been identified as Corporal Wong Yelong, and as per protocol, after following due procedure, the Chinese soldier will be released soon. Siddhant Sibal, our principal diplomatic correspondent, is joining us live from New Delhi now. Siddhant, thank you so much for joining us. Could you tell us a little bit about this new development? Well, the big development which has comes at a time when both India and China are engaged in sensitive talks. We know that the 8th Corps Commanders meeting is expected to take place very soon. But by and large, this is nothing new in terms of people or soldiers crossing over line of actual control, because that area is not demarcated, and these kinds of incidents have happened. In fact, this is the third such incident amidst the standoff between both the armies at the line of actual control. The previous two incidents have happened in Sikkim and in Arunachal Pradesh. In fact, in Arunachal Pradesh, few Chinese cattle had crossed into the Indian territory and India had returned them back. And in Sikkim, we know that 3 Chinese personnel were found. They were not associated with the PLA, of course. They were returned back by the Indian Army. And this happened, this incident, the Sikkim incident happened just days after the 29th August development, when India was able to prevent any attempts by the Chinese to occupy the south bank of Pangong Lake. So this time, of course, the difference is that it involves PLA soldiers. Of course, espionage as an angle is something that will be the top focus. We do expect a statement by the Indian Army very soon. We do expect the statement coming in a few hours from now. And as per protocol, usually what happens is that India returns the soldiers, or if they are civilians who have crossed the line of actual control. And in this case also, it looks like a case of confusion by the soldier, but of course coming amidst the tension between both the countries. Yes, Siddhant, and also, do you think this will have any practical implications on the ongoing peace talks and standoff between India and China? Well, it's not going to have a major impact, but the fact that it is expected as per protocol that India will allow the soldier to go back, it is a symbolism, it's a sign of positivity. It is something that will be obviously taken in a positive way by the Chinese as well when the soldier will be returned. So, in a sense, it will have a certain impact, indirect impact in terms of the positive development around the talks. But by and large, what India wants is a complete de-escalation at the line of actual control. This is still not happening. It has been months now. The standoff started in the month of May. The Galwan incident happened in June, and we know the other developments happened in August and September. But of course, September saw a number of developments, including 2 high-level in-person engagement by the Indian Foreign Minister and the Defense Minister. Yes. The joint statement coming out, 3 joint statements have been released by India and China. So, by and large, the release will be seen in a positive light by, of course, by the PLA. All right. All right, Siddhant, thank you so much for joining us with all those details. तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, और जो ये कह रहे हैं वो बात सही है कि कई बार ऐसा होता है कि चाइना के जो लोग हैं वो बाउंड्री के इधर आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि बाउंड्री जो है डिमार्केटेड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फेंस हो या कोई ऐसे तरीके से बना रखा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई जगह बहुत बड़ी एक वॉल टाइप फेंस है। तो अगर इस टाइप की फेंस है तो समझ सकते हैं, चलिए अगर कोई आ रहा है तो कोई कूद के आया है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है। मगर अगर कोई चल के आ जाए और वहाँ पे जो है इंडियन फोर्सेस उस एरिया को पेट्रोल कर रही होंगी, तो इंडियन सोल्जर्स उस एरिया को पेट्रोल कर रहे होंगे और बाई चांस उनको दिख गया होगा कि कोई बंदा और उनको पकड़ा होगा, तो पता लगा होगा कि वो पीएलए का सोल्जर है।
अब ये इसके डिटेल्स इन्होंने दिए नहीं थे कि कैसे पकड़ा है, क्या रात को पकड़ा गया, क्या वो भाग रहा था, क्या वो भूल गया था, क्या हुआ। मगर इस वक्त जिस तरीके से टेंशन चल रही है, कोई ये ऐसे कोइंसिडेंस नहीं होता कि बाय चांस पकड़ा गया। जहाँ तक है ये वही है कि उनका अटेम्प्ट होगा, कुछ ऐसे कह रहे हैं एस्पियोनाज का, उसका मतलब यही है कि अटेम्प्ट होगा स्पाई नेटवर्क का कि आ जाए इंडिया की तरफ और देख ले कि हमारी डिप्लॉयमेंट कैसी है। उनको मेन तो यही पता करना है कि कितनी डिप्लॉयमेंट है इंडिया की, क्या काम वहाँ चल रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन उनको होगी सैटेलाइट से, कुछ वो जानना चाहते होंगे या नेबरिंग विलेजेस में जाएं वहाँ पता करें। तो जो भी स्पाइज करते हैं तो बहुत पॉसिबल है कि स्पाई होगा जो अब हमने पकड़ लिया है, बाय चांस वो दिखाएगा कि मैं भूल गया था, मुझे कुछ पता नहीं है। और क्योंकि अभी कोई वॉर शुरू नहीं हुई है तो जेस्चर ठीक है कि आप उसे छोड़ देंगे कि चलिए हमने तुम्हें पकड़ लिया तो हमें छोड़ रहे हैं, ये अच्छा जेस्चर कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने जैसे कह रहे हैं मई में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और अब जो है अक्टूबर हो गया है और कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा। मेरे ख्याल से होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा भी नहीं, ख़त्म नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेन पॉइंट तो यही है कि क्या आप स्ट्रांग हो। अगर इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया पावरफुल है, इंडिया मिलिट्री ट्रस्ट करता है, इंडिया अपनी पावर दिखाता है, इंडिया कहता है मैं बैक डाउन नहीं करूँगा, इंडिया और एग्रेसिव होता है, तो इस एग्रेशन से अगला बंदा पीछे हटेगा, वरना पीछे नहीं हटेगा। तो इंडिया जो है ऑफ कोर्स चलता रहेगा इस पाथ पे ऑफ अपनी मिलिट्री को इम्प्रूव करने में, अपनी फोर्सेस को वहाँ डालने में और रेडी रहने में और एग्रेशन दिखाने में, जिससे अगला बंदा बैक डाउन कर ले। और जिस तरीके से इंडिया फास्ट चल रहा है तो मेरे ख्याल से अगर एक कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो इसमें इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया कैचअप जल्दी कर लेगा। क्योंकि अब जो है मिलिट्री में ज़्यादा बजट जाएगा, ज़्यादा फोकस जाएगा R&D में। और हमने एक वो भी किया था वीडियो जिसमें जो माइक्रोमैक्स है वो वापस आ रहा है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस टेंशन से कि इंडिया बोलेगा ठीक है अगर ये लड़ाई हो रही है तो सभी लोग जो हैं आत्मनिर्भर भारत में जाएं, का उसको फॉलो करें, इंडिया का सामान ही खरीदें, चाइना का सामान ना खरीदें, वेपन्स में इम्प्रूव करें, रिसर्च डेवलपमेंट हो, ज़्यादा पैसा जाए आर्मी और वेपन्स में, जल्दी जल्दी जो हमारे पास गैप्स हैं उसको इम्प्रूव किया जाए, वेपन्स लाए जाएं जो उनसे स्ट्रॉन्गर हैं। तो इंडिया तो बहुत जल्दी कैचअप कर लेगा अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, 1-2 साल की बात है। और तब मेरे ख्याल से चाइना को पता लगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे कई रिपोर्टर्स ने भी कहा है कि तुमने सोते हुए शेर को जगा दिया है अब, और इससे जो है तुमने गलती कर दी। अब इंडिया जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और चाइना को पीछे कर देगा अपनी पावर से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने स्किल से और लोगों की इंटेलिजेंस से कि लोगों को क्या चीज़ खरीदनी है। मतलब स्वदेशी रहना है, अपना मेड इन इंडिया खरीदना है, मेक इन इंडिया करना है। तो ये सब फैक्टर से काफ़ी फ़र्क आएगा। और जैसे उनके स्पाइज़ जो है यहाँ आ रहे हैं, ऑफ कोर्स इंडिया के स्पाइस भी वहाँ पे होंगे, ये ऑब्वियस है। मगर उनका पकड़ा गया बंदा, इससे पता लगता है कि वो इतने स्मार्ट नहीं है अगर पकड़े जा रहे हैं। अगर अकेला आदमी स्ट्रे करता है, मतलब ऐसा हुआ जी अकेला आदमी घूम रहा था यहाँ आ गया, तो पागलपन है कि अकेला क्यों, राइट। उनकी पूरी की पूरी पीएलए की फोर्स कहाँ है? तो पीएलए की जो फोर्स है, अगर आपको दिखे कि पूरी की पूरी जो है, पूरी टोली जो है, पूरी टीम जो है वो दिख रही है, तो समझ गए आप उनके सोल्जर्स हैं। मगर एक बंदा हमारे एरिया में आ जाए, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसका मतलब इसके पीछे कोई बात थी, तभी एक बंदा आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं एक बंदा चला गया, चलो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ जी, और वहाँ पे पकड़ा गया। तो ज़रूर कोई इसमें बात है। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी ही न्यूज़ हमें पब्लिक को पता लगी है, उसके पीछे बहुत कुछ होगा जिसको लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मगर इस वक्त जिस तरह के टेंशन चल रहे हैं, मैं कहूँगा ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। ये कोई मैं ऐसे ही बात नहीं करे, क्योंकि टेंशन चल रही है और उसमें अगर कोई पकड़ा गया है तो इसमें कोई बात है। और इंडिया डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करेगी। और इंडिया बहुत ही सिविल सोसाइटी है, तो इंडिया बोलेगी ठीक है तुम्हें पकड़ा था, तुम्हारी जो भी तुम कर रहे थे तो हमने रोक दिया, तुमसे जितनी इंटेलिजेंस ले सकते हैं ले लेंगे और फिर तुम्हें छोड़ देंगे अपनी कंट्री में। क्योंकि जो भी जिनेवा के कन्वेंशंस हैं, जो भी वॉर के कन्वेंशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी वॉर तो हुई नहीं है। तो वॉर में भी ये होता है, प्रिजनर ऑफ वॉर को रिटर्न करना पड़ता है। तो इसमें जो है ये तो अभी वॉर भी नहीं हुई, तो ऑफ कोर्स रिटर्न किया जाएगा, मगर पहले पता किया जाएगा कि हुआ क्या था।
तो काफ़ी अच्छा वीडियो है और ये मेरे ख्याल से यही बार-बार सारे वीडियोज़ एक ही मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया को मेहनत करनी है और ज़बरदस्त टक्कर देनी है। तो ओके चलिए गाइज़, मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।